یہ میلاد منانا یہ کوئی آج کی رسم نہیں ہے مسلمانوں، یہ 1400 سال پرانی رسم ہے۔ لوگ آج ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ ٹارچر کرتے ہیں کہ آخر کار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے دیوانے ہیں کہ ایک دن میں اتنا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور بلا وجہ کی رسومات کا ایجاد کرتے ہیں۔ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے بڑا بہترین کلمہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا خیر فی اسراف، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے، اور لا اسراف فی خیر، بھلائی میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس نبی نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے قربان کر دی، کیا اس نبی کی ولادت کا جشن منانا شرک یا بدعت ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے اور کیوں منانا چاہیے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ پھول کا ذکر ہو تو کیا بلبل کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ شمعہ کا ذکر ہو کیا پروانے کو دلیل کی ضرورت ہے؟ باپ کی تعریف ہو کیا بیٹے کو دلیل کی ضرورت ہے؟ استاذ کی تعریف ہو تو کیا شاگرد کو دلیل کی ضرورت ہے؟ ارے نبی کی تعریف ہو تو تم کیسے امتی ہو کہ تمہیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ نبی کی تعریف کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے دلیلوں کا تو ہمارے پاس انبار ہے، اگر چاہے تو قرآن و حدیث سے لاکھوں کروڑوں دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نبی کے ذکر کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن عظیم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اگر کوئی مائکا لال یہ ثابت کر دے کہ قرآن عظیم کے اندر عید میلاد النبی منانا شرک ہے یا بدعت ہے یا نیا کام ہے، تو پوری زندگی یہ تنظیف رضا ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن عورتوں کو آدمی کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، جس سے شادی جائز ہے، اس عورت کا قرآن عظیم کے اندر اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک آیت کے اندر 5ویں پارے میں یہ بیان کر دیا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے جو حرام کردہ عورتیں ہیں ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ایک جگہ 8ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے تفصیل بیان کر دی گئی جو تم پر حرام کر دی گئی ہے عورتیں، جو حلال ہیں عورتیں جن سے ہم اور آپ رشتہ کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بلا تمہید مجھے کہنے دیجیے جائے کہ پیغمبر اسلام کا جو ہم میلاد مناتے ہیں قرآن عظیم کے اندر کہیں شرک نہیں لکھا ہے، کہیں بدعت نہیں لکھا ہے، بلکہ ہزاروں احادیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے بھی پیغمبر اسلام کا میلاد منایا ہے۔ میرے آقا نے خود میلاد منایا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم اللہ رب العالمین نے خود اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دے کر کے بس اپنی گفتگو کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا تشریف لائے حجرہ عائشہ سے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیسے بیٹھے ہو، تم کیسا جلسہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداکا امینا و ابینا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لِأَنَّا جَلَسْنَا،
नहमदुल्लाह व नस्कुरुल्लाह अला मा हदाना लिदीनियल इस्लाम व मन्ना अलैका बिका। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम इसलिए बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, हम महफिले मीलाद कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप जैसी हस्ती को हमारे हवाले करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आप जैसी नेमत मिलने के शुक्रिया में हम मिलाद बना रहे हैं। गोया कि सहाबा कह रहे थे कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मेरे आका से बड़ी कोई नेमत हो सकती है? ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम की मिलाद में आपसे जितना हो सके खुशी का इजहार करो, लाइटें लगाओ, झंडियां लगाओ। अरे मैं न जाने कितने रुपए बिला वजह खर्च कर दिया करता हूं। अगर मेरे नबी की विलादत की खुशी में खर्च करूंगा तो क्या ये फजूल खर्ची हो जाएगा? आज तक शादियों में इतने इखराजात हो रहे हैं, इतने खर्चे हो रहे हैं, इतने टाइटल बनाए जा रहे हैं, उसमें आज तक किसी ने शिरक व बिदअत का फतवा नहीं लगाया। उसमें किसी ने नहीं कहा कि ये फजूल खर्ची है। अरे नबी के नाम पर खर्च किया जाए तो ये बिला वजह का खर्च कैसे हो सकता है? इसको बिदअत कैसे कहा जा सकता है? मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम पर बहुत बड़ा इनाम किया है, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब बताइए ऐसी शख्सियत को जिसके ताल्लुक से अंबियाए किराम ने तारीफें की है, जिसकी आमद की बशारतें अंबिया ने दी है, जिसका जश्न सहाबा ने मनाया है, तो बताइए ऐसे नबी को हम अपने जैसा बशर कह सकते हैं? ऐसे नबी को क्या हम अपने जैसा बशर कह सकते हैं? ऐसे नबी को हम क्या मालिको मुख्तार मानने से इनकार कर सकते हैं? अब बताइए ऐसा नबी अल्लाह ताला ने हमें अता किया कि जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस को, हजरो शजर को, अल्लाह ताला ने बरगो समर को, शम्सो कमर को अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में बनाया है। मेरा रब हदीसे कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन। ऐ हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को नहीं बनाता। अल्लाह अकबर कबीरा, कायनात को बनाया है तो नबी के सदके में, ये सूरज बना है तो नबी के सदके, हम और आप आए हैं तो नबी के सदके, कुरान मिला नबी के सदके, ईमान मिला नबी के सदके, ये रोशनी मिली नबी के सदके, ये कायनात की हर शय मिली है ये नबी के सदके में। अब बताइए ऐसा नबी हमें मिला और उस नबी की उम्मत में शरफ होने का हमें हासिल हुआ है, शरफ होने का मौका मिला है, तो बताइए ऐसे नबी का हम जश्न ना मनाएं, ऐसे नबी की विलादत की खुशी में इजहार न करें, तो बताइए हमसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? हमसे बड़ा निकम्मा कौन हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बड़ा ही अरफो आला है। इस कायनात के अंदर तारीकी और जुल्मत छाई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब की आमद करके इस कायनात से तारीकी को छाट दिया और नूर के अंदर तब्दील फरमा दिया। पूरी दुनिया कुफ्र शिर्क के दलदल में फंसी हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भेज करके ऐसा एहसान किया है, ऐसा एहसान किया है कि रब्बिल जलाल की कसम, अगर उस एहसान का शुक्रिया हम कयामत तक करते रहे तो हम उस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मेरे आका की आमद से पहले पूरी दुनिया जो है तारीकी में छाई हुई थी। इंसान की हकीकत नहीं समझ रहा था। एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा था, एक भाई अपनी बहन को काट रहा था, एक बेटा अपनी माँ को पहाड़ की चोटी पे ले जा करके उसको नीचे फेंक रहा था, एक बेटा अपनी माँ को दुनिया की मंडी में बेच रहा था। लेकिन रब्बुल जलाल की कसम, ये बेबाए अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही थी, ये यतीम फरियाद कर रहे थे, ये बच्चियां फरियाद कर रही थी, मौला
मौला कोई हमारा मसीहा भेज दे, मौला हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाला कोई भेज दे। रब्बे जुल जलाल की कसम, इन बेबाओं की दुआ, इन यतीमों की दुआ, इन बच्चों की दुआ जब अर्शे मुअल्ला से जाकर के टकराई, रब की मशीयत को मलाल आता है तो रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनाते गेती पर कदम रंजा फरमाया और शायर ने कह दिया कि नागहा साकिन हवाओं पे रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। मैं मेरे दोस्तों, मैं गुफ्तगू मैं दूसरी थोड़ी करना चाहता हूँ, 10 मिनट के लिए मुझे और टाइम दीजिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, जिस नबी का इतना बड़ा मकाम हो, जिस नबी की आमद के लिए दुआएं हजरत इब्राहीम ने की हो, जिस नबी की उम्मत में होने के लिए 12 अंबियाए किराम ने दुआएं की हो, उस नबी की उम्मत में हमें शरफ मिला है, उस नबी की उम्मत में हमें मौका मिला है, तो बताइए उस नबी को, उस नबी की विलादत पर जश्न मनाया जाए, उस नबी की विलादत में खुशी का इजहार न किया जाए तो हमसे बड़ा निकम्मा कौन हो सकता है। आज लोग कहते हैं कि नबी तो हमारी तरह बशर है। अरे वो जैसे बशर थे, जैसे वो बशर हैं वैसे ही हम बशर हैं। अरे जैसे वो इंसान है वैसे ही हम इंसान हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान अजीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका से ये कहलवाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ऐ हबीब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। आखिरकार क्यों कहलवाया? अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा ऐ हबीब तुम बशर हो, ऐ हबीब तुम इंसान हो, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने जब जब अपने हबीब को पुकारा है तो कभी कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी कहता है ताहा, कभी कहता है यासीन, कभी कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नसीरा। अल्लाह ताला ने कभी भी अपने हबीब को बशर नहीं कहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहलवाया ऐ हबीब आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। मेरे आका ने कह दिया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मुझ पर वही आती है। आखिरकार अल्लाह ताला ने ये अपने हबीब से क्यों कहलवाया?